رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی بہت بڑی فضیلت۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باہمت لوگ۔ ہم سفر کرتے کرتے اس وقت سکرنٹ پہنچے۔ سندھ کا شہر ہے سکرنٹ، اور یہاں سے ابھی آگے تقریباً 7 کلومیٹر کا سفر ہے۔ مستی خان چانڈیو یہ گوٹھ ہے، گاؤں کا نام ہے۔ یہاں سجاد اتاری، ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے۔ جامعۃ المدینہ سکرنٹ کے یہ طالب علم ہیں اور تیسرے سال کے امتحانات دے چکے، چوتھے سال میں انشاءاللہ الکریم ابھی پہنچیں گے۔ مزید تفصیل کیا ہے یہ مستی خان چانڈیو پہنچ کر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت، جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت۔ عاشقان رسول، اس وقت سجاد بھائی کے پاس ہم موجود ہیں۔ ان کے کچھ فیملی ممبران بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مستی خان چانڈیو، اس کے ساتھ یہ متصل آبادی ہے جس کا نام ہے حاکم خان چانڈیو۔ تو اس وقت ہم حاکم خان چانڈیو میں موجود ہیں۔ سجاد بھائی موجود ہیں اور سجاد بھائی کے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں، احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام نامی اسم گرامی کی برکتیں لوٹتے ہوئے اس بچے کا نام احمد رضا رکھا گیا۔ سجاد بھائی کے والد محترم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد سجاد بھائی کیسے جامعۃ المدینہ میں پہنچے کچھ اس حوالے سے بھی ان سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے شادی کی ہے، شادی کے بعد یہ جامعۃ المدینہ میں آئے۔ میں سجاد علی جامعۃ المدینہ سکرن میں درس نظامی کرتا ہوں۔ چھٹی کے بعد میں یہ سلائی کا کام کرتا ہوں۔ یہ میرا سا چھوٹا دکان ہے جس میں یہ کنفیکشنری کے کچھ ایٹم وغیرہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سلائی وغیرہ کا میں یہ کام کرتا ہوں، جس سے میں پڑھائی کا، روزانہ آنے جانے کا، فیملی کا، اپنے ابو کا، امی کا، اور جو بھی گھر کے چھوٹے بڑے اخراجات ہیں میں اس کام سے نکالتا ہوں۔ اس کے علاوہ جامعہ کے جو کتابیں وغیرہ، کاپیاں، دیگر سامان جو ہے میں سارا اسی سے نکالتا ہوں۔ تو درس نظامی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ جب سے دعوت اسلامی کا بنیاد امیر علیہ سنت نے رکھا ہے، میرا والد صاحب تقریباً اس وقت سے دعوت اسلامی واپس تھا ہے۔ میرے والد صاحب امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی کی، اپنے وقت سے اس جماعت میں وابستہ رہا، اور ہم بھی بچپن میں سے اپنے والد کے ساتھ رہے۔ تو ہم نے بچپن کا زمانہ یعنی کچھ پڑھائی میں، کچھ اس کے علاوہ ہم سلائی کا کام کرتے تھے۔ 2017-18 تک یہی کام کیا ہم نے۔ تو 2018 میں ہماری شادی ہوئی،
उस शादी के बाद मेरा एक इधर दुकान भी है, और एक इस्लामी भाई कारी नसीम, वो दात इस्लाम का एक शख्स है, वो इधर आता जाता था। उससे मेरी मालूमात हुई दात इस्लामी के बारे में। तो मैंने उससे दात इस्लामी का शेड्यूल पूछा कि ये कोर्स दर्स निज़ामी का कितने साल का है और पढ़ाई किस टाइम चलती है, किस टाइम छुट्टी होती है। और उसने मुझे सारा सिस्टम बताया कि 8 से 1 बजे तक पढ़ाई चलती है, उसके बाद छुट्टी होती है। कुछ कुछ बच्चे मुकीम हैं, कुछ बच्चे गैर मुकीम है, तकरीबन अक्सरियत मुकीम बच्चों की है। तो वालिद साहब से मैंने मशवरा किया, तो वालिद साहब ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, आप भले जामिया जाया करें और दरस निज़ामी का कोर्स करें। आप जो दुकान चलाते हैं, मैं उस पर बैठूंगा। उस दुकान पे कन्फेक्शनरी का छोटा सा काम भी है, और मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो ऐसे यानी मैंने दर्जा उला में दाखिला ली वो 2020 में ली। उसके बाद यानी 1 बजे छुट्टी होती है जामिया से, तो फिर दुकान पे आके मैं अपना काम संभालता था। फिर मगरिब नमाज तक, उसके बाद मैं दुकान पे बैठता था। मगरिब नमाज के बाद फिर मैं जामिया की पढ़ाई करता था रात 11-12 बजे तक। तो अब मैंने उला के पेपर दिए, उसके बाद सानिया अब मैं सालसा में के अभी मैंने पेपर दिए हैं। 8 से 1 इन्होंने दरस निज़ामी शुरू किया। वालिद साहब कुछ बीमारी का शिकार भी हैं और कुछ नकाहत और कमज़ोरी और इस तरह के मामलात भी ज़िक्र कर रहे थे, लेकिन आजमाइशें तो आती रहती हैं। जब अज़्म कर लिया कि अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना है, तो फिर इस अज़्म को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एक दूसरे का सहारा बनते हुए इस निज़ाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 8 से 1 ये पढ़ने के लिए जामियातुल मदीना चले जाते। वालिद साहब उस वक्त में दुकान पर तशरीफ़ फरमा होते। इनकी वापसी पर फिर ये दुकान का निज़ाम संभालना शुरू करते। इनकी दुकान भी आपको दिखाएंगे। दुकान भी 2 in 1 है, यानी सज्जाद भाई टेलर मास्टर भी हैं, कपड़े भी सिलाई करते हैं, इसके साथ कुछ परचून की दुकान भी है। मगरिब तक दुकान पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, और मगरिब के बाद से लेकर रात 11-12 बजे तक जो 8 से 1 असबाक पढ़े, उन असबाक को याद करने की सूरत करते हैं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू इन्हें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, अमल साले की दौलत नसीब फ़रमाए, और जिस जोश, जज्बे, वलवले और लगन के साथ ये तालीम का सिलसिला लेके आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें इन्हें कामयाबी नसीब फ़रमाए, आलिम बाअमल बने, मुफ्ती इस्लाम बने। 3rd ईयर का पेपर ये दे चुके, और अब 4th ईयर में इंशाअल्लाहुल करीम दरस निज़ामी के 4th ईयर में जाएंगे। जी, मज़ीद कुछ बताना चाह रहे हैं? इसके अलावा मैं शादीशुदा भी हूँ। मेरा एक बच्चा है जो दुकान से इन्वेस्ट आती है। मैं पढ़ाई वगैरह का खर्चा, रोज़ाना आने जाने का खर्चा मैं उसमें से निकालता हूँ। मेरा घर यानी जामिया से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। रोज़ाना आने जाने में वो मैं खुद ही अपने खर्चे से चलाता हूँ। वो घर के यानी फैमिली के अखराजात, बच्चे के मैं अपने, और उसके अलावा जामिया का जो सारा खर्च, किताबें वगैरह, पेन वगैरह, ये सारा खर्च वालिद मैं। साहब की मेडिसिन वगैरह के अखराजात भी होंगे? जी हाँ, वालिद साहब के भी हैं अखराजात। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके सामने है कि बाहिम्मत लोग जब एक हदफ तय कर लेते हैं तो उस हदफ के हुसूल के लिए फिर जुट जाते हैं। दाएं बाएं आगे पीछे देखने का सिलसिला नहीं होता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वो शेर याद आ रहा है कि जिसमें आप कहते हैं, ज़ोफ़ माना मगर ये ज़ालिम दिल, उनके रास्ते में तो थका ना करे। जब चल नहीं रहा है महबूब पर, और फिर थकावट कैसी, फिर उकताहट कैसी, और फिर बेजारी कैसी। राह महबूब पर चलने के लिए अगर कोई मुशक्क़त का सामना भी करना पड़ता है, तो मुशक्क़तें झीलते हुए अपने आका के कदमों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सज्जाद भाई के ताल्लुक़ से इनके असाज़ा इकराम क्या कहते हैं, आइए इनके असाज़ा के तासुरात भी सुनते हैं। मेरा नाम अबुल वफ़ा हबीबुल्लाह तारी मदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जामियातुल मदीना में तदरीस कर रहा हूँ, और 2012 से ही अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस का सिलसिला रहा। उसके साथ फिर फ़िज़ानी मदीना में कुछ अर्सा ज़िम्मेदारी रही है। तो माशाल्लाह ये हमारे सज्जाद भाई दर्जा सालिसा के तालिब इल्म हैं, और पढ़ाई के हवाले से भी माशाल्लाह बेहतरीन हैं, और अखलाकी एतबार से भी बाअदब भी हैं, और उसके साथ साथ माशाल्लाह ये शादीशुदा भी हैं, तो उनके बच्चे भी हैं। तो ये जामियातुल मदीना के साथ साथ माशाल्लाह अपने घर की किफ़ालत भी करते हैं। ये खुद दर्जी का काम करते हैं,
दिन के वक्त यहाँ पढ़ाई करते हैं, फिर ज़ोर के बाद चले जाते हैं, फिर अपना घर की किफ़ालत के हवाले से माशाल्लाह ये कामकाज करते हैं। फिर माशाल्लाह क्लास के अंदर भी अच्छी पोजीशन वाले तलबा में शुमार होते हैं। और इनका जो माहौल है, क्योंकि ये अतराफ़ का है, गाँव का माहौल है, और इस माहौल से निकल कर आना और अपने घर की किफ़ालत करते हुए इस दौर के अंदर तालिब इल्म दीन का इल्म दीन हासिल करना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जज़्बा अता फ़रमाया है और पाबंदी से जामिअतुल मदीना में हाज़िर होते हैं और असबाक को अच्छे अंदाज़ से याद करते हैं, समझदार हैं, चीज़ों को समझने के हवाले से माशाल्लाह अच्छे हैं। और उसके साथ-साथ अगर एनवायरमेंटली देखें तो अपने इलाके के अंदर भी माशाल्लाह नेकी की दावत को आम करने वाले, मसाजिद की तामीरात में अपनी अ, हिस्सा मिलाने वाले हैं। माशाल्लाह अभी इन्होंने अपने इलाके में एक प्लाटिंग हो रही थी, वहाँ से मस्जिद लेके प्लाट लिया और अपना कुछ हिस्सा मिलाकर मज़ीद प्लाट लेकर उन्हें मस्जिद में भी शामिल किया। हालाँकि इनके घर की कैफ़ियत ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ अपना, कुछ वालिदैन से, कुछ अज़ीज़ व अक़रबा से लेकर और इन्होंने माशाल्लाह मस्जिद के लिए जगह मज़ीद कुशादा की और अब उसकी तामीरात के हवाले से कोशा हैं। मोहम्मद आशिक मदनी, नाज़िम जामिअतुल मदीना सकरंद। मुझे यहाँ पर जामिअतुल मदीना सकरंद के अंदर नज़ामत के हवाले से 3 से 4 साल हो चुके हैं। एक तालिब इल्म ऐसा जो मैंने देखा जिसका नाम सज्जाद अली वल्द मियाँ बख्श चांडियो, जब उन्होंने दाखिला लिया जामिअतुल मदीना सकरंद के अंदर, तो उससे पहले वो अपना कारोबार किया करते थे, दर्जी का काम, और साथ में कुछ कन्फेक्शनरी वगैरह इसका भी वो काम किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जब मैंने देखा कि इस अंदाज का, इस तरह का तालिब इल्म यहाँ पर जामिअतुल मदीना सकरंद के अंदर आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसा तालिब इल्म कि वो कैसे एक अपना काम भी कर रहा है और साथ में दुकान भी चला रहा है, शादीशुदा भी है, उसका बच्चे भी हैं, कि वो अपने बीवी बच्चों का पेट भी पाल रहा है और जामिअतुल मदीना के अंदर वो पढ़ भी रहा है। और आज जो है वो दर्जा ऊला के अंदर नहीं, दर्जा सानिया के अंदर नहीं, आज जो है वो दर्जा सालसा के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आलिम दीन बनाए। सज्जाद भाई के फैमिली के कुछ मेम्बरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद भाई तारुफ भी करवा दें, कौन कौन हैं? ये मेरा अंकल है मोहम्मद अशरफ चांडियो, और इसके साथ ये मेरा बड़ा कज़न है मोहम्मद रोशन चांडियो, और इस साइड पे ये मेरा भी कज़न है मुश्ताक अहमद, और इसके साथ ये मेरा भाई है हाकुम खान, और उसके साथ मेरा कज़न है मुर्तज़ा चांडियो, और उसके साथ उस्ताद साहब जामिअतुल मदीना के तशरीफ़ फरमा है। रोशन अली चांडियो, सज्जाद साहब के बड़े कज़न। मुझे ये बहुत खुशी है जो हमारा कज़न दीनी तालीम में बड़ा इसका इंटरेस्ट है, और ये एक बाइखलाक पर्सन है जो अपने रिश्तेदारों से इखलाक से पेश आता है और अपने भाई, बाप, अम्मी के साथ भी इसका हुस्न सलूक अच्छा है, और हमारी दुआएं इसके साथ है। इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे, आलिम बनेंगे। हिनजी तइलीम जेको आहे दीनी तइलीम सां तमामु घणो इंट्रस्ट आहे। इंशाल्लाह ही पंहिंजे मक़सद में, पंहिंजी सोच में कामयाबु थींदो, हुनखे बिल्कुलु कामयाबु कंदो। मैं मुश्ताक अहमद चांडियो, सज्जाद भाई का कज़न। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी खुशी हुई है कि सज्जाद भाई दीनी तालीम हासिल करते हैं और उसके साथ अपना कारोबार भी करते हैं, घरों अखराजात भी चलाते हैं। उसके साथ इसके छोटे बच्चे भी हैं, अम्मी अब्बू भी हैं, उसके सारे खर्चे इसी कारोबार में से पूरे करते हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि अल्लाह इनको अपने मकसद में कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इखलाक बहुत अच्छा है, अम्मी अब्बू के साथ भी घर में सलूक अच्छा होता है। जिससे भी मिलते हैं, कज़न से, भाई से, बाहर किसी दोस्त से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका रवैया बहुत अच्छा है। हाकुम अली चांडियो, सज्जाद का बड़ा भाई। इंशाल्लाह हमें खुशी है जो हमारा भाई मेहनत कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। सुबह से 8 बजे जाता है, 1-2 बजे तक अपने मदरसे में होता है पढ़ाई के हिसाब से, और घर में भी अपनी पढ़ाई करता है। रात 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होता है। एक दिन ये बड़ा आलिम बनेगा।
इंशाल्लाह। दीनी तालीम में वॾो शौक़ु आहे हिन जो ऐं माशाल्लाह महिनत बि ज़बरदस्त कंदो आहे ऐं नंढनि वॾनि सां सलूक बि सुठे तरीक़े सां कंदो आहे। उन तालीम खां बैद में जो नंढिड़ो शॉप बि आहे ऐं प्लस में दर्ज को मतिलबु टेलर मास्टर बि आहे। पर तालीम खां बैद में माशाल्लाह पंहिंजो कारोबार बि हलाईंदो आहे ऐं उन कारोबार मां पंहिंजो घर बि फैमिली बि माशाल्लाह उन मां ई संभालींदो आहे ऐं ख़र्चो तय कंदो आहे। ऐं बैद में तक़रीबन 12 बजे खां पोइ माशाल्लाह पंहिंजी तालीम ज़बरदस्त तरीक़े सां जेको आहे सो तयारी कंदो आहे ऐं माशाल्लाह ज़बरदस्त महिनत कंदो आहे ऐं असांखे माशाल्लाह ख़ुशी थी आहे जो पंहिंजी महिनत करे पियो ऐं आलमी जो कोर्स बि करे पियो माशाल्लाह ऐं असांखे वॾी ख़ुशी आहे ऐं असां जूं माशाल्लाह दुआऊं बि इन सां गॾु इन अलाह साईं उनखे कामयाबु कंदो। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सज्जाद भाई के असातिज़ा के तासुरात भी सुने, सज्जाद भाई के फैमिली मेम्बरान इनके तासुरात भी सुने। मैं एक गुजारिश आपके सामने रखूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम हम सज्जाद भाई के मकान की तरफ भी बढ़ेंगे, इनकी दुकान की तरफ भी बढ़ेंगे। रईसुत तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी, आपने इब्तिदाई दीनी तालीम हासिल करने के लिए सफ़र किया। घर के कुछ नामुसाइद हालात थे, पेचीदा हालात थे, घर में तंगी थी। वालिद साहब एक छोटी सी दुकान चलाते थे। वालिद मोहतरम ने इनको कहा कि तुम भी मेरे साथ आके दुकान पे बैठा करो, मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं दुकान के मामलात को लेके आगे बढ़ सकूं। घर में आ गए, वालिद साहब के साथ दुकान पे बैठना शुरू किया, लेकिन इल्म दिन हासिल करने का जोश और इल्म दिन हासिल करने का जज्बा ये साथ साथ था। आपने वालिद मोहतरम और घर के बड़े अफराद से इजाज़त ली, जामिया अशरफिया मुबारकपुर में दाखिल हो गए। ख़ुद फरमाते हैं कि कई साल तक ये सिलसिला रहा कि घर के हालात चूँकि टाइट थे, वालिद मोहतरम की तरफ से 1 रुपया भी मेरे तालीम के अखराजात के लिए मुझे नहीं दिया जा सका। लेकिन जज्बा था, शौक़ था, लगन थी, वलवला था। अपने मामलात को ख़ुद ही मैनेज करते हुए आगे बढ़ते चले गए और आज दुनिया जब उनका नाम लेती है तो उनके नाम से पहले रईसुत तहरीर कहा जाता है। और अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने कैसी दीनी खिदमात इनके ज़रिए ली, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस शहर से ये गुज़र जाया करते थे वहाँ अपने निशान कदम छोड़ कर जाते थे। को मस्जिद, को मदरसा, को दीनी इदारा, कोई भी दीन मतीन की खिदमत का सिलसिला, जहाँ जहाँ से गुज़रते चले गए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के निशान और मोहब्बत के हसीन नुकूश छोड़ते चले गए। आइए बढ़ते हैं सज्जाद भाई के मकान की तरफ। जज़्बा रहे सलामत, जज़्बा रहे सलामत। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम सज्जाद भाई के घर में आ चुके हैं। ये बकरी सज्जाद भाई के भाई की है, ये बकरी किसी की है और उन्होंने सज्जाद भाई को दी हुई है। ये बकरी चरा के कुछ ना कुछ उजरत इसके ज़रिए भी मिल जाएगी। ये पीछे आप देख रहे होंगे एक टूटा हुआ मकान है, ये मकान है सज्जाद भाई का। अभी जो सिंध में सैलाब वगैरह की सूरत बनी थी तो उस सैलाब की वजह से ये मकान मुतासिर हुआ। पहले ये फैमिली इसी मकान में रह रही थी, अब ये मकान की कैफियत आपके सामने है। छत टूट चुका है और नीचे वाली हालत भी काफ़ी आजमाइशी है। इसके मकान का पीछे वाला जो हिस्सा है, इस तरफ से पानी आया था और इस पानी ने आकर इस मकान को मुतासिर किया था। ये सिंध में एक मकान नहीं है, इस तरह के कई एक मकानात हैं जो बारिश की वजह से और सैलाब की वजह से मुतासिर हुए। दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कसीर आशिकान रसूल के साथ ताआमुन का सिलसिला किया, लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा है कि दावत इस्लामी की तरफ से पेश किया जाने वाला करोड़ों रुपए का इमदादी सिलसिला, वो भी इस नुकसान की तलाफ़ी प्रॉपर अंदाज में नहीं कर पाया। माह रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है। FGRF ईद उल फितर के मौका पर भी, रमज़ान मुबारक में कई एक मौक़े पर भी अपने इन आशिकान रसूल इस्लामी भाइयों के साथ ताआमुन का सिलसिला जारी रखे हुए है। आप तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में ये भी दरख्वास्त पेश करूँगा कि FGRF का दस्तो बाजू बनिए और इस इमदादी सिलसिले को लेकर मज़ीद आगे बढ़ने की साई उसमें आप भी शामिल हो जाइए। चाहे इस मकान में पहले सज्जाद भाई और उनकी फैमिली वगैरह रह रही थी, अभी ये साथ एक मकान है जिसमें 3 कमरे हैं। इस वक्त सज्जाद भाई की फैमिली इस मकान में रह रही है
اور یہ جو مکان ہے اس مکان میں 3 کمروں میں 3 فیملیز رہ رہی ہیں جن کے افراد چھوٹے بڑے ملا کے 12 کے آس پاس افراد بتائے جا رہے ہیں، یعنی 3 کمروں میں 12 افراد رہائش پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ ہم میں سے کئی اس طرح کے کہ جو پر آسائش مکانات میں رہنے کے باوجود بھی شکوہ اور شکایت والی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں۔ عالی شان مکان ہے، بینک بیلنس بھی ہے، گاڑی وغیرہ کا انتظام بھی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت ساری وسعتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن ناشکری کے جملے زبان پر ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے شکر گزار بندے بن کے جئیں۔ سجاد بھائی کی دکان کی طرف بڑھیں گے۔ جذبہ رہے سلامت، جذبہ رہے سلامت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم سجاد بھائی کی دکان میں موجود ہیں۔ یہ دکان یہاں سے شروع ہو کے یہاں ختم ہو رہی ہے۔ گھر آپ نے دیکھ لیا، دکان آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سلائی کا سلسلہ بھی ان کا ہے۔ اس ساری کیفیت کے ہوتے ہوئے بھی راہ علم کو اختیار کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ یعنی یہ دیکھ لیا، سارے کا سارا نظارہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، سب اپنی نظروں کے سامنے ہے، لیکن یقین مانیے یہ باہمت لوگ ہیں کہ جو مشقتوں کے پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے علم کے خزانے کی طلب میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں یہاں آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ ترازو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی دکان میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ تول کر بیچتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ میرے سامنے رکھا۔ اس تھیلی میں گندم ہے، جو سامان دکان کا ہے سامان بھی آپ کے سامنے ہے، پاپڑ ہیں، چپس ہیں، املی ہے، ٹافیاں ہیں، یا دیگر اس طرح کے کوئی بچوں کے اسکول کی کاپیاں ہیں، چھوٹا موٹا سامان ہے۔ جسے سامان چاہیے ہو وہ پیسوں سے لے لے تو بھی ٹھیک، اور اگر پیسے دستیاب نہ ہوں تو آدھا کلو گندم اس کے بدلے میں ٹافیاں، 1 کلو گندم اس کے بدلے میں پاپڑ، چپس یا اسکول کی کتابیں اور کاپیاں۔ یقین جانیے یہ سب منظر دیکھنے کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت ہی پیش کروں گا کہ جنہوں نے ہماری اس نوجوان نسل کو علم دین کے حصول کا ایسا جذبہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ سجاد بھائی، اور یہ صرف ایک سجاد نہیں ہے، کتنے ہی اس طرح کے سجاد ہوں گے کہ جو دعوت اسلامی کے اداروں میں علم دین کی طلب دل میں لیے اور حصول علم دین کا جذبہ دل میں لیے تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب رہے جذبہ سلامت، دے ہمیں ہمت، خدمت کرے تیرے دین کی، دے ہم کو عافیت۔